Good morning, everyone. So, try to understand. In the previous lecture, we understood overall 5 adjustment. Closing stop, ट्रेडिंग को क्रेडिट करना है और असेट में ऐड करना है. ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करके असेट में ऐड करना है एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is lower. At cost price or market price whichever is lower. The second adjustment is prepaid expenses. Expenses which are paid in advance. They are the expenses of the next year and not the current year. इस ईयर के एक्सपेंस नहीं होते, वो नेक्स्ट ईयर के होते हैं, बट हमने उनको इसी साल में पे किया होता है. उनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में होता है. And therefore we deduct them from the expense of the current year and we add in asset. हम इस ईयर के एक्सपेंस से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे. Sometimes some expenses are incurred but not paid. Outstanding expenses, accrued but not paid. Expenses payable. उनके केस में, right? उनके केस में try to understand. उनके केस में आता है, right? They are expenses but payable. मीन्स वो liability है. So add in expense, add in liability. We will add in expense and we will add in liability. Then expenses के prepaid expense, outstanding expense. Income के भी वैसे. Income received in advance. Income received in advance. When the income is received in advance, try to understand. और pre-received income is income of the next year. वो next year की income होती है, but we have received in the current year itself. हमें advance में पैसा आया होता है. So anything received advance is never income, but it is liability. So हम उसको income से minus करेंगे और liability में add करेंगे. We will deduct it from income. We will add in liability. And the fifth adjustment was related to, right, outstanding income, income earned but not received, income receivable. वो income है और receivable भी, मतलब asset भी. So we will add in income. We will add in asset. हम उसको income में add करेंगे और asset में भी add करेंगे. So these are the 5 adjustments which we did in the previous lectures. ठीक है? Now some more adjustments. 6 लिखो everyone. 6th adjustment. Everyone has to write. Depreciation adjustment. Depreciation. As everyone knows, depreciation is a decrease in the value of the fixed asset. We depreciate the depreciable fixed asset except land जिसकी life unlimited है, right? All other fixed asset like building, machinery, vehicles, computers, equipments, furniture, fixtures, those assets have limited useful life. They have limited useful life. Over that useful life, we depreciate those fixed assets. Land के केस में life is unlimited and therefore we cannot depreciate it. We need 3 factors if you remember to calculate depreciation: the original cost of the asset, estimated scrap value of the asset, and estimated useful life. हमने depreciation chapter किया है if you remember. So there is a depreciation adjustment in the books of accounts. हमारा accountant गधा है. He has not provided for the depreciation. He has not passed the entry of the depreciation. तो हम उसको बोलेंगे अरे भाई pass the entry of the depreciation. मतलब you have to pass the entry depreciation account debit to fixed asset account credit. And at the end of the year वो depreciation P&L account को debit किया जाएगा. P&L account debit to depreciation account credit. That entries everybody knows.
सो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे एंड ऑलवेज रिमेंबर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द यूसेज और द टाइम. If I use the asset for the 12 months, I will provide depreciation for the 12 months. If I use the asset for the part of the year, I will provide proportionate depreciation. Matlab, try to understand. I had a machinery of rupees 10 lakhs at the beginning of the year. And at the this is on 1st April 20. मेरे पास 10 lakhs की मशीनरी है. So it is opening balance in the machinery account. I purchased 2 lakhs की machinery during the year on 1st July 20. At the end of the year, I have to provide depreciation at the rate of 10% per annum. Your machinery account will show the balance of 12 lakhs. Machinery account will show balance of 12 lakhs on 31st March. You have not yet provided depreciation. Accountant ने अभी तक depreciation provide नहीं किया. Now we will provide the depreciation. हम depreciation provide करेंगे. Try to understand. तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. Please try to understand. So ये जो 12 लाख की asset दिख रही है, उसमें से 10 lakhs की asset पूरे साल यूज हुई है. And 2 lakhs की asset 9 months use हुई है. So the depreciation for the year will be 10 lakhs pay at the rate of 10% for 9 months. Sorry, for the 12 months. Sorry, 12 months. पूरे साल यूज हुआ है ना. And 2 lakhs pay addition पे opening balance पे पूरे साल का, opening balances पे पूरे साल का, and addition pay from the date of addition till the year end in that year. Which will be, this will be 1 lakh and this will be 1 lakh 50,000. Sorry, 15,000. Total depreciation will be 1 lakh 15,000. And then we will deduct 1 lakh 15,000 from 12 lakhs. We will deduct 1 lakh 15,000 from the 12 lakhs. And depreciation loss होता है, P&L को डेबिट किया जाएगा. Asset से माइनस हो रहा है, asset डिक्रीज हो रही है, asset की वैल्यू गिर रही है, डिक्रीज हो रही है, is a loss. P&L अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. Depreciation is not a direct expense. Depreciation is indirect expense. तो ये 1,50,000 asset से माइनस किया जाएगा and P&L को डेबिट किया जाएगा. So closing में asset बचेगी 12 lakhs minus 1,15,000, that is 10,85,000. 10,85,000. और हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने डेप्रिसिएशन ढूंढा है. कोई मुझे बोलेगा इज इट स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? कोई मुझे बोलेगा ये मेथड कौन सी होगी? यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन. आप थोड़ा सोचो विच इज दिस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और एसएलएम मेथड? बाकी लोग कौन सी मेथड होगी? भूमिका, श्रुतिका, अरे किधर हो तुम लोग, हो या गए? यस, ओके. श्रुतिका, श्रुतिका का आंसर है WDV. मैडम क्यों रे WDV? एनी लॉजिक? एक मिनट. श्रुतिका बोलो. यस मैम बोलो, अनम्यूट. श्रुतिका मैडम, श्रुतिका किधर है मैडम? इस प्रॉफिटेबल ऐसे नहीं मैडम. मेथड कौन सी है? मेरे हिसाब से दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. मेरे हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, बिकॉज
हमारे पास 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख का. दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस इन असेट अकाउंट. दिस इज यू परचेस्ड. सो जब हम ओपनिंग बैलेंस पे डिप्रेशन देते हैं, इसकी कॉस्ट क्या होगी? आई डोंट नो. व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? आई डोंट नो. 10 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट मुझे नहीं पता. सो जब आप ओपनिंग बैलेंस पे डिप्रेशन, इस ईयर के एंड में आप डिप्रिसिएशन उस ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे दे रहे हो, कॉस्ट पे नहीं. हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं. एंड ये असेट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम क्लोजिंग, जब हम किसी ईयर के एंड में डिप्रेशन देते हैं तो इस ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू है उस पे हम डिप्रेशन देते हैं. और अगर साल भर में कोई एसेट परचेस किए तो एसएलएम हो या डब्ल्यूडीवी हो, इफ यू परचेस द एसेट इन बिटवीन द ईयर तो उस ओरिजिनल कॉस्ट पे दिया जाता है. So this is not SLM method. This is actually return down value method. This is return down value method. Then next आगे. So depreciation लिख लेना. ठीक है. Entry. Depreciation account debit. Depreciation account debit. 2. Fixed asset account debit. And then depreciation is transferred to P&L. To depreciation account. Always calculated with respect to time. Always calculated with respect to time. ठीक है. इसके इफेक्ट, उसका फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम फिक्स असेट्स. लेस फ्रॉम फिक्स, बैलेंस शीट में फिक्स असेट रहेंगे ऐसे साइड पे, वहां से माइनस किया जाएगा. लेस फ्रॉम फिक्स असेट्स. एंड सेकंड, add in expense in P&L debit, in profit and loss account debit. फिक्स असेट से माइनस करना है. फिक्स असेट डेबिट होते हैं, डेबिट से माइनस करना है मतलब क्रेडिट. एंड एक्सपेंस में ऐड करना है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डेबिट में ऐड करना है मतलब डेबिट करना है. लिख लेना. So decrease in the value of the fixed asset. Decrease in the value of the fixed asset is, right? Decrease in the value of the fixed asset is the depreciation. And always remember formula to calculate. लिखो. Right? On opening balance, always for 12 months. ओपनिंग बैलेंस पे 12 मंथ्स का डिप्रेशन आएगा, पूरे साल का आएगा. ऑन एडिशन, राइट, फ्रॉम डेट ऑफ एडिशन till date of till the year end, till year end. Always remember depreciation and interest. Depreciation and interest is always calculated with respect to time. Depreciation and interest is always calculated with respect to time. Next.
नेक्स्ट, एंड ये जो मेथड होती है ना, इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द डब्ल्यूडीपी। हम ओपनिंग बैलेंस पर डिप्रेशन देते हैं, जब भी हम ओपनिंग बैलेंस पे डिप्रेशन देते हैं हम डब्ल्यूडीपी फॉलो करते हैं। एंड जब हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रेशन देते हैं, किसी भी ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रेशन देते हैं, वो एसएलएम होती है। नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, दिस इज ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020, account debit and credit, plant and machinery, plant and machinery 1 lakh, vehicles 80,000, furniture 50,000, information adjustment, furniture includes purchase of furniture. Furniture includes furniture purchased of rupees, मतलब 50,000 इंक्लूड, 50,000 में है, फिर से ऐड नहीं कर रहे, 50,000 में है। फर्नीचर परचेस्ड ऑफ रुपीज 20,000 ऑन 1st July 19. Second, vehicle includes मतलब वो 80,000 में है, 80,000 में है, includes vehicle purchased ठीक है, ऑफ रुपीज 50,000 on 1st January 20. And third, plant and machinery was purchased on 1st October 19. ठीक है, these are the information। ये जो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की है वो आपने परचेस की 1st October 19 को। ये जो 80,000 की व्हीकल है उसमें से 50,000 की व्हीकल आपने 1st जनवरी को परचेस किया है। ये 50,000 का जो फर्नीचर है ये एंड वाले बैलेंस है, 31st दिसंबर के 31st मार्च के बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, इनमें कोई चेंजेस हुए थे साल भर में। डेप्रिसिएट fixed assets at the rate of 10% per annum। लिखो, ठीक से लिखो, जल्दी लिखो, एवरीवन मेक इट फास्ट। होने के बाद यस लिखो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। होने के बाद यस लिखो, और जो लिखो
Plant and machinery was purchased on 1st October 2019. Third adjustment is plant and machinery purchased on 1st October 19. चलो अब एक ये ढूंढते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझना है दिस बैलेंसेस, ये जो बैलेंस है वो कौन सी तारीख पे, 31 मार्च 20। हमारा ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। हमें इस ईयर का प्रॉफिट ढूंढना है, मतलब ऑब्वियसली हमें इस ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन एक देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले हम प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं, ध्यान देना। ये आपका ईयर है, मान के चलो ईयर है, ध्यान देना। वी स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 19, ended on 31 March 20. Diagram sometimes makes calculation easy, पिक्चर अच्छे से समझ में आता है। 31 दिसंबर 20 को हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की है। 31 दिसंबर 20 को हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की है। 31 दिसंबर 20 को क्या लिखा है, पढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ परचेस ऑन 1 अक्टूबर 19। 1 अक्टूबर 19 कब आएगा, 1 अप्रैल 19 के बाद आएगा यहाँ पे। 1 अक्टूबर 19 यहाँ कहाँ पे आएगा, 1 अक्टूबर 19। हमने इस तारीख पे ये असेट परचेस की थी। प्लांट एंड मशीनरी जो हमें 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है 31 दिसंबर पे। आज हम कहाँ पे, आज हम यहाँ पे 31 दिसंबर 20 पे हम देख रहे हैं हमारे पास 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है। ये कब परचेस हुआ था, 1 अक्टूबर 19 को। तो आप मुझे बोलो ओपनिंग में कुछ बैलेंस था, नहीं। ऑब्वियसली ओपनिंग में कुछ नहीं रहेगा। ओपनिंग में 0 की प्लांट एंड मशीनरी थी। 1 अक्टूबर को 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, इसलिए क्लोजिंग में हमारे पास 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जो भी प्लांट एंड मशीनरी वो हमने साल भर में परचेस की। ये क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन हैज डाउट, बोलो मुझे इसमें किसी का डाउट है क्या, ये डायग्राम में कुछ नहीं समझा तो बोलो यस और नो। डाउट है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। जल्दी थोड़ा एक्टिव रहो, कुछ नहीं होता है। गुड, डायग्राम समझ लेना, ठीक है। गुड, अब दूसरी डायग्राम। यस, दूसरी असेट है व्हीकल्स। 31 दिसंबर 20 को, 31 दिसंबर 20 को व्हीकल में 80,000 बैलेंस है। व्हीकल में 80,000 बैलेंस है। उसका क्या लिखा है, पढ़ो। उसका क्या लिखा है, व्हीकल इंक्लूड, मतलब 80,000 इंक्लूड व्हीकल परचेस ऑफ 50,000 ऑन 1 जनवरी 20। 1 जनवरी 20 कब आएगा, कहां पे, यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर 20 के पहले, 1 अप्रैल 19 के बाद। सो इस ईयर में आपने 50,000 की व्हीकल परचेस की। यू परचेस व्हीकल ऑफ 50,000 ऑन दिस डेट। तो कोई मुझे बोलेगा कि 1 अप्रैल को कितना बैलेंस रहेगा, कोई मुझे बोलेगा कि हमारे पास पहले से लास्ट ईयर से ही कितने की व्हीकल हमारे पास रहेगी। क्लोजिंग में 80 है, साल भर में 50 की परचेस की, मतलब ओपनिंग में कितना बैलेंस था, 30। सो 1 अप्रैल पे हमारे पास 30 की व्हीकल थी, फिर हमने 50,000 की व्हीकल परचेस की, इसलिए हमारे पास 80,000 की व्हीकल है, ठीक है। यही डायग्राम को और कॉपी करता हूं थर्ड एसेट के लिए। अब हम ले रहे हैं कौन सी एसेट, फर्नीचर 50,000। फर्नीचर 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 20। डेट देखो, 31 मार्च 20 की बात हो रही है। 31 मार्च 20 को हमारे पास 50,000 का फर्नीचर है। हमारे पास 50,000 का फर्नीचर है। उसके बारे में क्या लिखा है, पढ़ो। हमारे पास 50,000 का फर्नीचर है। फर्नीचर इंक्लूड, मतलब 50,000 इंक्लूड्स फर्नीचर परचेस्ड ऑफ 20,000 ऑन 1 जुलाई 19।
1 जुलाई 19 यहाँ कहाँ पे रहेगा? 1 जुलाई 19 यहाँ कहाँ पे रहेगा? 1 अप्रैल 19 के बाद और 31 मार्च 20 के पहले हमने यहाँ पे 20,000 की फर्नीचर परचेस किया। क्लोजिंग में 50,000 का फर्नीचर है, साल भर में 20,000 का फर्नीचर परचेस किया। तो आप मुझे बोलो कि ओपनिंग में कितने का फर्नीचर था? एवरीवन, ओपनिंग में कितने का फर्नीचर था? परफेक्ट, 30,000। हमारे पास ओपनिंग में 30,000 का था, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो इस ईयर में ओपनिंग होता है वो 30,000 का, प्लस हमने और 20 परचेस किए, इसलिए 50,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब हम डिप्रेशन निकालेंगे, ध्यान देना मैं कैसे निकालता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेसिएशन। Calculation of depreciation. Plant and machinery, vehicles and furniture. ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिप्रेशन कैलकुलेट करने का? ओपनिंग बैलेंस अगर है तो उसमें पूरे साल का, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अप्रैल से मार्च एंड पूरे साल चलता है, तो ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का। ठीक है, लिखो ऑन ओपनिंग बैलेंस for 12 months, on opening balance for 12 months. Yes, कितना ओपनिंग बैलेंस है ध्यान देना। मुझे बोलो प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं। मुझे बोलो व्हीकल में कितना ओपनिंग बैलेंस है? 30,000 पे 10% फॉर द एंटायर ईयर विच इज 3,000। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000 पे 10% फॉर द एंटायर ईयर 3,000। एड राइट, एड क्या करोगे? ऑन एडिशन, अगर साल भर में कुछ एडिशन है तो ऑन एडिशन फ्रॉम डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड, डेट ऑफ एडिशन टिल ईयर एंड। हम जितने मंथ्स यूज करेंगे उतने मंथ्स का डिप्रेशन देंगे टिल द ईयर एंड्स। ठीक है, मुझे बोलो प्लांट में कितने का एडिशन है? 1 लाख का। प्लांट में 1 लाख का एडिशन है एट द रेट ऑफ 10%। फॉर कब एडिशन है? देखो ना, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स रहेंगे, 1 जुलाई से 9 मंथ्स, अप्रैल से 12 मंथ्स, जुलाई से 9 मंथ्स, अक्टूबर से 6 मंथ्स एंड जनवरी से 3 मंथ्स। पता होना चाहिए, ठीक है? सो 6 मंथ्स। सो 1 लाख का 10% 10,000 आता है, 6 मंथ्स मतलब 5,000, 6 मंथ मतलब हाफ ईयर 5,000। नहीं, यहाँ पे कितनी की एडिशन है? व्हीकल पे 50,000 की एडिशन है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 3 मंथ्स के लिए 50,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स। 50,000 का 10% आता है 5,000। उसका 3 मंथ्स मतलब 1/4, 5,000 का 1/4 विल बी 1250 एंड आपने 20,000 की फर्नीचर परचेस किया है इन बिटवीन द ईयर ऑन 1 जुलाई, तो 9 मंथ्स के लिए 20,000 पे 9 मंथ्स के लिए 20,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स। 20,000 का 10% इज 2,000। 2,000 फॉर 9 मंथ्स 3/4, 2,000 का 3/4 इज 1,500। चेक करो, देखो। So this is your depreciation.
ये आपका डेप्रिसिएशन है। ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल कितना रहेगा 0 प्लस 5,000। व्हीकल पे ओपनिंग बैलेंस पे 3,000, एडिशन पे 1,250, टोटल 4,250। फर्नीचर पे ओपनिंग बैलेंस पे 3,000, एडिशन पे 1,500, 4,500। देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ओपनिंग असेट पूरे साल यूज होती है, इसलिए 12 मंथ का डेप्रिसिएशन। और अगर साल भर में परचेस किया तो वहां से ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन। लिखो एवरीवन ठीक से, चलो जल्दी करो। लिखो जल्दी, होने के बाद यस लिखो, सर्टिफिकेट मूव है। ठीक है, जल्दी, गुड। सो डेप्रिसिएशन मतलब लॉस, तो ध्यान देना। अब मैं थोड़ा अपना टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, upper portion is trading, below portion is P&L. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस शीट जितना रिलेवेंट है उतना निकल रहा है, ध्यान देगा। बैलेंस शीट, दिस इज असेट साइड। जो भी ट्रायल बैलेंस में होता है वो एक जगह पे आता है। ये अपना आपने कसम खाई है, सबसे पहली कसम, जो भी ट्रायल बैलेंस में होगा हम एक ही जगह पे लिखेंगे। सो ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी है, उसको असेट में लिखा जाएगा 1 लाख। अगर भगवान कृष्ण भी आपको बोलते हैं 2 जगह पे लिखना तो लिखना नहीं, किसका भी नहीं सुनने का। ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह पे लिखना। व्हीकल 80,000, 80,000 असेट है, असेट में लिखो। फर्नीचर 50,000, 50,000 फर्नीचर 50,000, ध्यान देना, ठीक है। फर्नीचर 50,000, यहां तक क्लियर है। नाउ अगर ये आपके असेट्स है तो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे 5,000 का डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी पे 5,000 का डेप्रिसिएशन है, माइनस डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू। डेप्रिसिएशन मतलब हमारी 1 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी है हम उसको यूज करते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। देखो प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, उनकी जैसे जैसे आप यूज करोगे वो सेकेंड हैंड हो जाती है और उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वही हुआ है प्लांट एंड मशीनरी के साथ, उसको हमने यूज किया इसलिए उसकी 5,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो उसकी वैल्यू 95,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, व्हीकल को हमें कितने से डेप्रिसिएट करना है 4,250, 4,250, 4,250। मतलब बचेगा कितना, बचेगा 75,750 लेस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। आपने निकाल के रखा है 4,500, 4,500। It is 45,500. Depreciation is in adjustment. Depreciation is not in trial balance. उसके 2 इफेक्ट आएंगे, माइनस फ्रॉम असेट एंड असेट डिक्रीज हो रही है मतलब लॉस है, असेट की वैल्यू डिक्रीज होना मतलब लॉस है, P&L को डेबिट किया जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन।
एक एक प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 5000, व्हीकल्स वहां से जितना माइनस हुआ यहाँ पे डेबिट होगा, लॉस होता है 4250, फर्नीचर 4500, टोटल आएगा 750, 9 + 3 13,000, टोटल आएगा 13,750। सो हमने ओवरऑल इस साल में 13,750 का डेप्रिसिएशन दिया। और मैंने जब डेप्रिसिएशन चैप्टर सिखाया था तभी भी मैंने बोला था एज पर इनकम टैक्स एक्ट, as per companies act, it is mandatory to provide depreciation. It is mandatory to provide depreciation except land, because land has unlimited useful life, infinite useful life. All other fixed assets which are limited useful life need to be depreciated, because लाइफ खत्म होने के बाद उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो हमें उस वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। द कंसेप्ट इज द डेप्रिसिएशन। किसी को डाउट है क्या? बोलो, किसी को डाउट है क्या प्लीज? यस और नो? अरे समझा क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? गुड। सो ये देखो, ये था डेप्रिसिएशन का, ठीक है। सो एक सेकंड, नंबर 6, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ध्यान देना, ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम फिक्स असेट। फिक्स असेट से माइनस करो। एंड सेकंड इफेक्ट, ऐड इन एक्सपेंस इन P&L, इन P&L डेबिट, बराबर। आगे नेक्स्ट, यहां तक किसी को डाउट है क्या? बोलो, यहां तक किसी को डाउट है क्या? ये एडजस्टमेंट्स के एडजस्टमेंट आपको क्या करने, एक लिस्ट बनानी है और आपके रूम में चिपका के रखो सामने, तो आते जाते टाइम आपको वो एडजस्टमेंट दिखेंगे। यही एडजस्टमेंट आपको लाइफ लॉन्ग लगने वाले हैं। तो ठीक से उसको, जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा तो एक उसका चार्ट बना के रखो और वो सामने रखो। सोते टाइम, उठते टाइम, रूम में आते टाइम, जाते टाइम, वो सामने रहेगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे नंबर 6 हुआ, राइट। 7, एडजस्टेड नंबर 7, unrecorded purchases। unrecorded purchases or goods purchased and received, goods purchased and received, गुड्स परचेस के रिसीव्ड भी किए, गुड्स परचेस एंड रिसीव्ड, बट
omitted to be recorded in the books. Omitted मतलब अच्छा, आनस का क्या क्वेश्चन है सर, व्हाट इफ द डेप्रिसिएशन इज डन ऑन द फैक्ट्री प्रोडक्ट, सो द एक्सपेंस, देखो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर नहीं रहे ना, मैंने आपको पहले ही बोला हम ट्रेडिंग कंसर्स का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। इन फाउंडेशन आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी यूज होते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, वो पीएनएल में नहीं आता। जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है दे यूज मशीनरीज टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, वो डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रहेगा तो वो मैन्युफैक्चर अकाउंट में आएगा। बट हम 11th एंड 12th महाराष्ट्र बोर्ड में जो करते हैं वो हम ट्रेडिंग का लिए करते हैं, सो ट्रेडिंग में फिक्स एसेट की जरूरत नहीं होती, फिर भी डेप्रिसिएशन है मतलब वो पीएनएल में आएगा। सो 11th एंड 12th में डेप्रिसिएशन हमेशा पीएनएल में आएगा, बट इन फाउंडेशन सम डेप्रिसिएशन आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा और कोई डेप्रिसिएशन आपका राइट पीएनएल में आएगा, तो वो फाउंडेशन में रहेगा। आगे नेक्स्ट, unrecorded purchases, let's start. गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड, परचेस हुए रिसीव्ड भी हमारे पास आए भी, बट ओमिटेड, ओमिटेड मतलब आप भूल गए, ओमिट करना मतलब भूल गए, रिकॉर्ड ही करना भूल गए। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इन द परचेस डे बुक। परचेस बुक में क्रेडिट, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, इफ यू रिमेंबर सब्सिडरी बुक्स, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स इज रिकॉर्ड इन द परचेस बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक, समझ में आ रहा है? तो ओमिटेड बी रिकॉर्ड इन द परचेस बुक। हमने परचेस किए गुड्स क्रेडिट पे और रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कोई मुझे बोलेगा क्या व्हाट इज द एंट्री व्हेन यू परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट? बोलो, व्हाट इज द एंट्री व्हेन यू परचेस द गुड्स ऑन क्रेडिट? लिखो। लिखो एवरीवन। परफेक्ट मानसी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यस पराग, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, करण करेक्ट, तेजश्री ना, तेजश्री मैडम करेक्ट, गुड, देव करेक्ट। व्हेन वी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस को डेबिट करते हो और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करते हो, प्लस माइनस में बोलो। परचेस में डेबिट करना मतलब ऐड करना या माइनस करना, परचेस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो मतलब परचेस में ऐड या परचेस में माइनस। बोलो, परचेस खुद डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है डेबिट, उसको डेबिट कर रहे हो मतलब उसमें ऐड, एंड क्रेडिटर्स में क्या कर रहे हो, ऐड या माइनस? क्रेडिटर्स में ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, क्रेडिट माइनस कर रहे हो, क्रेडिटर्स में भी ऐड, बिकॉज क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, आप क्रेडिट कर रहे हो। जब आपने गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे तो परचेस इंक्रीज करने, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करने, तो लिखो राइट एंट्री। मतलब जो ट्रायल बैलेंस में हमारा अकाउंटेंट गधा है, मैं हमेशा बोलूंगा हमारा अकाउंटेंट गधा है, वो भूल ही गया रिकॉर्ड करना। मतलब जो ट्रायल बैलेंस में परचेसेस है वो इनकरेक्ट, जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज दोनों कम दिखाए उसने। तो अब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। रिकॉर्ड ही करना भूल गए, इसलिए परचेस भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हमारे लैंग्वेज में फर्स्ट एड इन परचेस। अच्छा, परचेस कौन से अकाउंट में रहेंगे, ट्रेडिंग में रहेंगे या पीएनएल में रहेंगे? एड इन परचेस, बोलो एड इन परचेस, परचेस किस में रहते हैं? ट्रेडिंग, परफेक्ट, इन ट्रेडिंग डेबिट। एंड सेकंड, एड इन क्रेडिटर्स इन लायबिलिटी। इन बैलेंस शीट लायबिलिटी।
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे रहेंगे क्रेडिटर्स, उसमें ऐड करो। सो डेबिट में ऐड कर रहे हो डेबिट, लायबिलिटी में ऐड कर रहे हो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, बराबर बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सिंपल है, समझा क्या ये? अनरिकॉर्डेड परचेसेस, परचेस ही रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए परचेस रिकॉर्ड करना, तो करो, ठीक है, समझा क्या? यस और नो? देखो देन नंबर 8, अनरिकॉर्डेड सेल्स और कभी कभी ऐसे लिखेंगे गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच, सेल किए और गए भी, कस्टमर को दिए भी, राइट, ओमिटेड और फेल्ड टू बी रिकॉर्डेड, omitted to be recorded, to be recorded, omitted to be recorded, in, omitted to be recorded in sales day book, sales book में, credit sale of goods, credit sale of goods सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है, सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होती है, सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होती है, एंड पार्टी को, डेटर को डेबिट होता है, इंडिविजुअल पार्टी को डेबिट होता है, इसकी एंट्री, सेल्स की एंट्री आएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट, एंट्री नहीं की करो टू सेल्स, एंट्री नहीं की तो करो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट आंसर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब डेटर में ऐड करना है लेस करना है, बोलो डेटर में ऐड करना है लेस करना है, एंड बोलो डेटर में क्या करना है, डेटर डेबिट होते हैं, हम उनको और डेबिट कर रहे हैं, मतलब देखो हमने सेल किया था, डेटर ही रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब हम क्या करेंगे, डेटर्स में ऐड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डेटर्स में ऐड करेंगे, लिखो ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स, सेल करोगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, परचेस करोगे तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, सेल करोगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, ऐड इन डेटर्स, ऐड इन सेल्स, इन ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे सेल्स रहेगा, वहां पे ऐड करो, ऐड इन सेल्स, इन ट्रेडिंग क्रेडिट, ऐड इन डेटर्स, इन बैलेंस शीट एसेट्स, समझा क्या? सिंपल है, एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं होते, दो इफेक्ट होते हैं, अगर आपको ट्रांजैक्शन पता है ना, आप खुद होकर एडजस्टमेंट कर सकते हो, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। 10 9 नंबर, एक मिनट, डेप्रिसिएशन लिया हमने, ठीक है, डेप्रिसिएशन लिया, देन आउटस्टैंडिंग इनकम लिया, प्रीडिस्पोड इनकम लिया, ये एडजस्टमेंट्स मैं सबसे एंड में करूंगा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड परचेस हुआ, अनरिकॉर्डेड सेल हुआ, मैं कोई एडजस्टमेंट आपको ज्यादा भी सिखाऊंगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन भी पूछे, अलग से लिखे नहीं है, नहीं, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, एक सेकंड ना, कौन सी ले लो,
यस, लिखो। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड bills receivable includes dishonored bills. ओके, आई नो ये आपके 11th का ट्रांजैक्शन नहीं है, 11th का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये 12th का ट्रांजैक्शन है। फिर भी मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है, एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं है, बट उसका एक्चुअल मीनिंग आपको 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बहुत डीप में समझेगा, ठीक है? ध्यान देना, ये हमारे, ध्यान देना अब भी, दिस इज माय बैलेंस शीट, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सपोज मेरे डेटर्स 1,20,000 के, इन लोगों ने मुझे बिल्स दिए। डेटर्स गिव्स मी बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स गिव्स मी बिल्स रिसीवेबल इन द पेमेंट, पेमेंट करने के लिए मुझे बिल्स रिसीवेबल देते हैं। सपोज एग्जांपल मेरे पास 1,20,000 के डेटर्स है, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी कैश, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी चेक, उन्होंने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिए। सो उन्होंने क्या किया, 20,000 के बिल्स रिसीवेबल दे दिए। अब डेटर्स रहेंगे 1,00,000 के एंड बिल्स रिसीवेबल रहेंगे 20,000। मतलब बिल्स रिसीवेबल कौन देता है, डेटर देता है। बिल्स रिसीवेबल जैसे चेक देते हैं ना डेटर्स, ये ले लो चेक पेमेंट के लिए, ये ले लो कैश पेमेंट के लिए, वैसे वो हमें बिल्स देते हैं। डेटर्स गिव्स अस बिल्स इन द पेमेंट। सो 1,20,000 के डेटर्स थे, 20,000 के बिल्स आ गए। मतलब अब डेटर्स कितने के, अब डेटर्स 1,00,000 के, डेटर्स 1,00,000 के एंड बिल्स रिसीवेबल 20,000 के। अब क्या हो गया, ध्यान देना, मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स की वजह से आते हैं, बिल्स रिसीवेबल डेटर्स देते हैं, ठीक है? एक असेट कम हो गई, डेटर्स कम हो गई और बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, दैट्स इट। ध्यान देना। सो डेटर्स ने हमें बिल्स दिए होते हैं, ये बोलते हैं ये ले लो बिल पेमेंट के तौर पे, बट अगर वो डिसऑनर हो गया, अगर वो बिल डिसऑनर हो गया तो हम डेटर से फिर से लेंगे। एग्जांपल मैंने आपको बिल दिया है, आई एम सपोज टू पे यू 50,000, मुझे आपको 50,000 देने, तो मैंने बोला ये ले लो बिल 50,000 का। आप क्या बोलते पता है, ये ऑनर करना चाहिए, अगर डिसऑनर किया तो नहीं चलेगा। मैंने आपको बिल दे दिया 50,000 का, तो आपके बुक्स में 50,000 का बिल दिख रहा है, बट अगर वो बाउंस होता है तो आप मुझसे फिर से 50,000 लोगे, बोलेंगे बिल का कोई यूज नहीं, वो बाउंस हो गया, वो डिसऑनर हो गया। सो वही हुआ है, सपोज ऐसे लिखा है बिल्स रिसीवेबल ऑफ 15,000 आर डिसऑनर, तो 15,000 के बिल्स डिसऑनर हो गए। मतलब उस बिल की वैल्यू, जो चीज डिसऑनर होती है उसकी वैल्यू नहीं होती ना। सो 15,000 के बिल्स डिसऑनर हो गए, तो अब कितने के बिल्स बाकी है, 5,000। 20,000 के बिल्स रिसीवेबल थे, उसमें से 15,000 की वैल्यू जीरो हो गई, डिसऑनर हो गए। और हमें किससे लेंगे, हमें किससे लेंगे पैसे, छोड़ेंगे क्या डेटर्स को, नहीं, डेटर्स को बोलोगे आप हमें 15,000 दे दो, डेटर्स कितने हो जाएंगे, 1,50,000। तो जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होते हैं तो बिल्स रिसीवेबल से माइनस होगा एंड डेटर्स में ऐड होगा, एक असेट कम होगी, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल, बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड है, वहां से एक्सक्लूड करो। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल, उसमें इंक्लूड है, वहां से निकालो। 20,000 में 15,000 के बिल डिसऑनर है, मतलब एक्चुअली कितने बिल की वैल्यू है, 5,000, तो माइनस करो बिल्स रिसीवेबल से। और ये बिल किसने दिए होंगे, डेटर्स, तो डेटर्स को फिर से पकड़ेंगे, बोलेंगे 15,000 दे दो, तो वी विल ऐड इन डेटर्स। तो लिख लेना, इसकी एंट्री लिखो, अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है। एंट्री आती है डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स इंक्रीज करने, डेटर्स में ऐड होगा इसलिए डेबिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। 2 बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज करने, असेट डिक्रीज करने, क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये एंट्री 12th की है, ये एंट्री 12th की है। इसका फर्स्ट इफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऑन बैलेंस शीट असेट साइड।
बिल्स रिसीवेबल से माइनस करो, एक असेट से माइनस किया और दूसरे असेट में ऐड कर दो। बिल्स किसने दिए होंगे? डेटर्स ने। तो डेटर्स को बोलेंगे आप आपसे हमें 15,000 लेने हैं, तो टोटल हो गए 1,15,000। ऐड इन डेटर्स। ऑन बैलेंस शीट एसेट से एक असेट कम हो गई, दूसरी असेट इंक्रीज हो गई। इसलिए अरे इफेक्ट किधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में कुछ भी पॉसिबल है मैडम, एज लॉन्ग एज डेबिट क्रेडिट है। देखो एंट्री में दोनों असेट भी हो सकते हैं, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो एंट्री होगी। इफेक्ट कुछ भी हो सकता है एज लॉन्ग एज डेबिट क्रेडिट है। ऐसे थोड़ी है कि एक P&L में रहेगा दूसरा बैलेंस शीट में रहेगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दोनों इफेक्ट्स ट्रेडिंग में हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट्स P&L में हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज लॉन्ग एज डेबिट एंड क्रेडिट है तब तक सब कुछ करेक्ट है। देन कभी कभी होता क्या है, ध्यान देना, देयर आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर 50,000 एग्जांपल, हमें पे करना है, ध्यान देना, हमें पे करना है क्रेडिटर्स को, हमें पे करना है क्रेडिटर्स को। कितना पे करना है? 50। मैं उनको कैश दे सकता हूं, मैं उनको चेक दे सकता हूं, या मैं उनको बिल्स रिसीवेबल दे सकता हूं। मैं उनको बिल्स रिसीवेबल मतलब मेरे लिए बिल्स पेएबल होंगे। सो मैंने उनको एग्जांपल 10,000 के बिल्स दिए, मैंने उनको एक्सेप्ट करके बिल दिए, तो मेरे क्रेडिटर्स कम होंगे और बिल्स पेएबल इंक्रीज होंगे। अब क्रेडिटर्स होंगे 40,000, मतलब कपल है, कपल डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल साथ में। डेटर्स को ही हम, डेटर्स से हमें बिल्स रिसीवेबल देते हैं और हम क्रेडिटर्स को बिल्स पेएबल देते हैं। क्रेडिटर्स को पे करना है, हमने उनको बिल पेएबल दे दिया, ठीक है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्स पेएबल इज बिकॉज ऑफ क्रेडिटर्स। तो हमने 10,000 का बिल एक्सेप्ट किया है, सपोज उसमें से हम 7,000 का बिल डिसऑनर करते हैं, बिल्स पेएबल डिसऑनर हो गए तो माइनस करो बिकॉज उनकी वैल्यू नहीं है, और ऐड करो क्रेडिटर्स में। किसको पे करना होगा? क्रेडिटर्स को। सो बिल्स पेएबल अगर डिसऑनर होते हैं तो बिल्स पेएबल कम होगा, क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा। लिखो 10, दोनों इफेक्ट असेट लायबिलिटी साइड पे, दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे लिखो। बिल्स पेएबल इंक्लूड्स dishonor acceptances, dishonor acceptances। bills payable include dishonor acceptances, payable includes dishonor, तो पेएबल से माइनस करो, लायबिलिटी से माइनस करो और दूसरे लायबिलिटी में ऐड करो, क्रेडिटर्स में ऐड कर दो, एंट्री आएगी। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, उसको कम करना है तो उसको डेबिट करना होगा, एंट्री। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, उनको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करो टू क्रेडिटर्स। इफेक्ट 1, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इंक्लूड, इंक्लूड तो एक्सक्लूड करो, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। इंक्लूड लिखा है तो वहां से निकालना होगा, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। Second, less from bills payable on balance sheet liability side. Second, add in creditors on balance sheet liability side. आपको ये अभी इन डिटेल में नहीं समझ सकता कभी कभी, बट ये पता होना चाहिए कि डेटर्स ने ही हमें बिल्स दिए होते हैं, डेटर्स ने ही हमें बिल्स दिए होते हैं। तो जब वो हमें बिल्स देते हैं तो डेटर्स कम हुए होते हैं, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं, एंड जब बाउंस होगा तो उल्टा करना होगा, डिसऑनर पे एंट्री रिवर्स करनी होती है, तो हम बिल्स रिसीवेबल से माइनस करेंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे। हमने ही हमारे क्रेडिटर्स को बिल्स दिए होते हैं,
हमने हमारे क्रेडिटर्स को बिल्स दिए होते हैं, उनको पेमेंट करना होता है, इसलिए जो बिल देते हैं उसको बिल्स पेएबल बोलते हैं। तो जब बिल्स पेएबल डिसऑनर होंगे तो बिल्स पेएबल से माइनस होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा। सो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, ध्यान देना, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल्स माइनस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऐड इन डेटर्स। बिल्स पेएबल इंक्लूड डिसऑनर्ड एक्सेप्टेंसेस और बिल्स पेएबल इंक्लूड डिसऑनर्ड एक्सेप्टेंसेस, बिल्स पेएबल से माइनस होगा, ऊपर क्रेडिटर्स में ऐड होगा, मतलब लाइबिलिटी का नाम चेंज होता है बस, दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में ही है। ठीक है, आगे द लास्ट थिंग, लास्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बिल्स, नंबर 11, discounted bill, sorry, endorsed bills to creditors now dishonored. Endorsed bills to creditors now dishonored, क्या है ध्यान देना, ये हमारा डेटर है, ये हमारा डेटर है, ये मैं हूं, ये हम है, और ये हमारा क्रेडिटर है। हमें इससे 20,000 रुपीज लेने हैं, हमें इसको 20,000 रुपीज देने हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हमें हमारे डेटर से 20,000 लेने हैं और हमें हमारे क्रेडिटर को 20,000 लेने हैं। तो डेटर क्या करेगा, हमें बिल देगा, वो कैश दे सकता है, चेक दे सकता है या बिल रिसीवेबल दे सकता है। डेटर पेमेंट के लिए हमारा डेटर हमें कैश दे सकता है, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो चेक दे सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, या हमें बिल रिसीवेबल देगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो हमें बिल देगा। तो डेटर्स कम हो जाएंगे और बिल रिसीवेबल इंक्रीज होंगे, और यही बिल हम इसको चिपकाएंगे। यही हमने ट्रांसफर करना, एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना। इफ यू रिमेंबर मैंने कैश बुक में सिखाया था, राइट, मुझे किसी ने, मेरे डेटर ने चेक दिया, यही चेक मैंने एंडोर्स किया, क्रेडिटर को एंडोर्स किया। मैंने क्रेडिटर को क्या बोला, देख ये 20,000 का बिल मिला है, ये तू रख, एंट्री क्या ही ध्यान देना यहाँ पे, when we received bill from debtor, एंट्री आ गई, bill receivable comes in debit to debtor account credit। ठीक है, यहां पे एंट्री क्या आ गई, जब हमने एंडोर्स किया, हम उसको बिल्स पेबल दे सकते हैं, क्रेडिटर को बिल्स पेबल दे सकते हैं, या जिसने मुझे, देखो मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करना है, मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, लास्ट 5 मिनट ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्रेडिटर को मैं कैश दे सकता हूं, या मैं खुद एक चेक उसको बना के दे सकता हूं, या किसी ने मुझे चेक दिया है वही चेक मैं उसको दे सकता हूं। पेमेंट के अलग अलग तरीके ना, क्या हो रहा है, मैं खुद एक चेक बना, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में, तो मैं मेरे अकाउंट का एचडीएफसी का चेक मेरे क्रेडिटर्स को दूंगा, ठीक है, या किसी डेटर ने, उसका आईसीआईसीआई में चेक अकाउंट है, उसने मुझे आईसीआईसीआई का चेक दिया, यही चेक मैंने उसको चिपकाया। जब मैं उसको कोई चीज चिपकाऊंगा, किसी ने मुझे दिया है और मैं उसको चिपका रहा हूं, वो इंडोर्समेंट है। चिपकाना मतलब इंडोर्समेंट, मुझे किसी ने चेक दिया, वही चेक मैंने उसको चिपकाया, एंडोर्स किया। मुझे किसी ने बिल दिया, कौन देता है बिल, डेटर देता है बिल, दिल नहीं इट्स बिल। सो डेटर मुझे बिल देगा, एंट्री आ गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही बिल मैंने किसको चिपकाया, क्रेडिटर को, तो एंट्री आ गई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल चिपकाया, गोज आउट। इन मतलब इसकी कंबाइन एंट्री क्या है, व्हाट इज द कंबाइन एंट्री, कंबाइन एंट्री इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। बराबर ना, डेटर से लेके क्रेडिटर्स को दिया,
सो डेटर्स डिक्रीज हो गए, डेटर्स डिक्रीज हो गए, डेटर्स डेबिट होते हैं, डिक्रीज हो गए मतलब क्रेडिट, क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज हो गए मतलब डेबिट, डेटर्स डिक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब हम चेक इंडोर्स करते हैं, जब हम बिल्स इंडोर्स करते हैं, इसकी वजह से डेटर से लेके क्रेडिटर्स को देते हैं, वो होता है इंडोर्समेंट। डेटर से लेके क्रेडिटर्स को देते हैं, या तो चेक या तो बिल, दोनों में से एक, चेक या बिल। उसकी वजह से क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं, क्रेडिट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, डेबिट, असेट डिक्रीज होती है, क्रेडिट। सो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स नहीं रहेंगे, डेटर्स डेटर्स नहीं रहेंगे। क्या बोला ध्यान देना, असेट असेट नहीं रहेगी, लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं रहेगी। असेट डिक्रीज हो गई, असेट डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, बैलेंस शीट टैली होगी। प्रोवाइडेड ये बिल या ये चेक ऑनर होता है, ये बिल या चेक ऑनर होता है। अगर ये डिसऑनर होगा, इफ डिसऑनर, डिसऑनर के टाइम हमें जो भी किया उसको रिवर्स करना होता है, राइट। इफ डिसऑनर, एंट्री रिवर्स करनी होगी, एंट्री आएगी डेटर अकाउंट डेबिट, उल्टा करो, टू क्रेडिटर अकाउंट। ये लिख लेना कहां पे, तो चलो लिखो, जल्दी लिखो, मेक इट फास्ट। लिखो, ये जो मैंने डायग्राम वगैरह निकाले लिखो ठीक से। ये हमने कैश बुक में भी किया था, इफ यू रिमेंबर। मैंने बोला था जब भी इंडोर्स चेक डिसऑनर होता है, इंडोर्स चेक डिसऑनर होता है, तो एंट्री आती है डेटर से लेना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिटर को देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट। इंडोर्स चेक डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं आती, इंडोर्स चेक डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं आती, बिकॉज उसमें बैंक अकाउंट नहीं होता, उसमें डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट होता है। इफ यू रिमेंबर, मानसी तूने क्वेश्चन पूछा था, इफ यू रिमेंबर, आई रिमेंबर, मैं चैट बॉक्स भी देख सकता हूँ, उस टाइम की मीटिंग ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन एंडोर्स चेक डिसऑनर जब होता है, एंडोर्स चेक जब डिसऑनर होता है, एंड चेक मिला, रिसीट साइड पर रिकॉर्ड होगा, चेक रिसीव्ड, कैश बुक रिसीट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। वही चेक हमने एंडोर्स किया, पेमेंट साइड, कैश बुक के पेमेंट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा, तो रिसीट साइड पे रिकॉर्ड होगा बैंक कॉलम में, एंडोर्स करने पे पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा बैंक कॉलम में। तो बैंक में आया, बैंक से चला गया, बैंक में अब कुछ इफेक्ट नहीं। अगर वो बाउंस होता है तो एंट्री आती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री होती है, एंट्री किसमें होती है, जर्नल प्रॉपर में होती है, ना कि कैश बुक में। लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है आपको, वो जैसे मैंने लोग निकाले वैसे निकाले, कुछ नहीं होता है। अरे लिख, होगा क्या लिख के, अरे होगा क्या लिख के, यस और नो। सो आप, अगर चेक डिसऑनर होता है या बिल डिसऑनर होता है, तो हमने डेटर से लेके क्रेडिटर्स को दिया था, तो डेटर्स कम हुए होते, क्रेडिटर्स भी कम हुए होते, दोनों डिक्रीज हुए होते हैं। जब बाउंस होगा तो क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है, डेटर्स को भी इंक्रीज करना है, क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है, डेटर्स को भी इंक्रीज करना है। तो आप मुझे बोलो प्लस माइनस में, डेटर्स में ऐड करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस में। जब बाउंस होगा तो क्या करेंगे, ये एंट्री आ गई, ये जो लिख रहे हैं ध्यान देना, क्या लिख रहे हैं, एंडोर्स, एंडोर्स बिल्स टू क्रेडिटर्स नाउ डिसऑनर्ड, उसकी एंट्री है, एंडोर्स बिल टू क्रेडिटर्स नाउ डिसऑनर्ड, उसकी एंट्री है, यस। फर्स्ट इफेक्ट, एड इन डेटर्स, एड इन डेटर्स ऑन बैलेंस शीट एसेट्स। Second, add in creditors on balance sheet liabilities. ध्यान देना,
डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी में बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, बिल्स रिसीवेबल से माइनस करो, डेटर्स में ऐड करो। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, बिल्स रिसीवेबल से माइनस करो, डेटर्स में ऐड करो। बिल्स पेएबल इंक्लूड डिसऑनर्ड एक्सेप्टेंस, बिल्स पेएबल से माइनस करो, क्रेडिटर्स में ऐड करो। एंडोस बिल डिसऑनर, जब ऐसे लिखा जाता है एंडोस बिल डिसऑनर, तो डेटर में ऐड करो, क्रेडिटर में भी ऐड करो, बैलेंस शीट टैली होगी। डेटर में ऐड करो, क्रेडिटर्स में ऐड करो, बैलेंस शीट टैली होगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 3 एडजस्टमेंट होते हैं फाइनल अकाउंट्स में। एक, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल, बिल्स रिसीवेबल से माइनस करो, डेटर्स में ऐड करो। दूसरा, बिल्स पेएबल इंक्लूड डिसऑनर एक्सेप्टेंस, बिल्स पेएबल से माइनस करो, क्रेडिटर्स में ऐड करो। एंड तीसरी एडजस्टमेंट होती है एंडोस बिल्स डिसऑनर्ड, तो डेटर्स में ऐड करो, क्रेडिटर्स में ऐड करो। हो गया क्या बोलो? सो आज हम यहाँ पे रुकेंगे। जितने भी एडजस्टमेंट्स किए 2-3 बार पढ़ लेना, समझ से करो। और एक आधा लेक्चर में 1-2 लेक्चर और एडजस्टमेंट पे काम करूंगा, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट्स हो गए ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करें तो एडजस्टमेंट का आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हो गया? लिख के करें, स्टार्ट करें। थैंक यू।